representing veterans of Pakistan, ex-servicemen of Pakistan, of the three services, Pakistan Army, Pakistan Navy, and Pakistan Air Force. I have with me Air Vice Marshal Fahim, which is sitting with me. I have Major General Jafri. I have Major Wasim, representing social media. Brigadier Zareen and Brigadier Jamil. Gentlemen, we represent over 2 million retired officers, JCOs, NCOs, and all ranks, from 4-star to a sepoy, a soldier, sailor, and airman. We are here today to talk about the recent developments between India and Pakistan and the false flag operation that India did in Pahalgam, Kashmir, in occupied Kashmir. It was a false flag operation which was initiated by India itself. And from this operation, they wanted to take an advantage of closing Indus water and abrogating the Indus Treaty between India and Pakistan. Mind it was done at a time when Vice President of America was visiting India. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, if you remember, Pahalgam operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air, and at the sea. And we want to give this message to the entire world that this time the India has threatened the very lives of Pakistanis by abrogating the Indus Water Treaty, which India cannot do unilaterally. You know it. But we are there. In fact, anytime they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan,
and to this Dharti Pakistan. Believe you me, whatever we are to do today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan. The Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, and it's not a story that I'm telling you. It is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, prosperity, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan, and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal, please. शुक्रिया सर। मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सबसे पहले तो आपको पीएफ की तैयारी के मतलब बताऊंगा, और दूसरा फिर मैं जो पीएफ के वेटरन्स की जो जज्बा है उसको हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं किसी भी एयरफोर्स की, वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है या कम करती है। टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस। ठीक है जी। इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। इसके अलावा जो पीएफ की मैन पावर है वो इस कौम के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं। ठीक है जी। और वो उनको पीएफ में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त में डाला जाता है, और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के निकलते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी, और हमें ये एहसास है पीएफ को कि जब पूरी कौम हमारे पर इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने महंगे महंगे जहाज़ लेके दे रही है, तो पीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मैन पावर है ये सारी दुनिया मानती है। ये वही मैन पावर है जिसने इसराइल के जहाज़ शूट किए थे। ठीक है जी। तो वो अभी भी अमेरिकन्स के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और ममालिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं। वो सब के सब हमें जो ना एक्नॉलेज करते हैं। तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ हेड ऑफ द इंडियंस। ठीक है जी। और दूसरी बात जो है उनकी जो मोटिवेशन है, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है पूरी कौम का। जो इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो पीएफ की मैन पावर है, इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है जो काम 6 घंटे में करती है वो 1 घंटे में करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। तो ये है हमारी तैयारी। जो पीएफ वेटरन्स हैं, हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं, वी आर टेक्निकल पीपल, और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट। कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे। बाकी जो है ना फिर सवालों में जो हम देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर आए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है
कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली। हमारी जो आर्मी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, दिस इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, पेट्रोलिंग कॉम्पिटिशन्स, बाकी कॉम्पिटिशन्स। हमारे जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दे आर अहेड। यूएन के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मोटिवेटेड हमारी आर्मी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग वेटरन ज़रूर हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी आप कहें हम में से किसी को भी, वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, एक्चुअली मेंटली वी आर रेडी, कि कोई भी टास्क हमें आर्मी दे हम अभी करने को तैयार हैं। इतनी जान है हम में अभी भी, किसी किस्म का टास्क, मतलब कि निचले से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, ये हमारी ड्यूटी है इस कौम के लिए। हमने 40-40 साल इस कौम की खिदमत की है और अभी टाइम है कि हम पे बैक करें। इसके बाद एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंडियंस हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप शुरू करें गंगा हाईजैकिंग से, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मकसद ये था कि टू कट ऑफ दी ओवर फ्लाइट्स टू देन ईस्ट पाकिस्तान। फिर आप आ जाए मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर, मैं सिर्फ मोटे मोटी 2-3 इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। जब क्लिंटन ने आना था तो छत्तीस सिंहपुरा में मैसेकर हुआ सिखों का, 35 सिख मेरे ख्याल थे, उनका मैसेकर हुआ, उन्होंने पाकिस्तान पे फ़ौरन डाल दिया। अब आप सिमिलैरिटी देखें ना, अभी इधर वांस आ रहा है, उधर क्लिंटन आया और वो उन्होंने हम पे मैसेकर का मलबा डाल दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई है और इंडियन कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, दिस जो एविडेंस है वो बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट करेक्ट, और इसलिए इट वाज प्रूवन इन द इंडियन कोर्ट कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट। फिर आप आ जाएं जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक जो हुआ, अगेन इट वाज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जी ये पाकिस्तान ने नहीं कराया, हालांकि उसकी वजह से पूरी एस्केलेशन हो गई थी, डिप्लॉयमेंट हो गई, इन्होंने उनको बहाना मिल गया। जो जम्मू और कश्मीर असेंबली में हुआ, अगेन इट वाज अ फॉल्स फ्लैग, इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इंडियन अपनी इंक्वायरीज़ ने ये फॉल्स फ्लैग करार दिया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी जो पुलवामा आप जानते हैं जो हुआ और कैसे हुआ और क्या हमारा रिस्पांस था, जो अभी हुआ है पहलगाम का, ये तो आप लोगों को अभी बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि ये इतना भोंडा तरीके से इन्होंने किया है, भोंडे तरीके से किया है ये जो फॉल्स फ्लैग है। मतलब कि 10 मिनट में FIR हो गई, आधे घंटे का रास्ता, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो ये आपको बताता है इंडियन माइंडसेट। ये जो जनरल साहब ने भी जिक्र किया है, जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है, ये आज से नहीं, इंडियंस बड़े अरसे से कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को कतरे कतरे के लिए तरसाऊँगा, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। और ये जो अव्वल तो दरिया इंडस को रोकना 10-15 साल की बात है और हम कोई चुप तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसके माइंड में, और ये दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो मोदी ने ये कराया है सारा। और दूसरा, इनको हमेशा बहाना मिल जाता है कि पाकिस्तान को टारगेट करें, टेररिज्म का एक उनको मिला हुआ है और उस पे वो टारगेट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर आप नोट करें, इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो पहले इंडिया को मिलती थी। वो फेक वीडियोस डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, दिस शोज़ के दे आर डेस्परेट। और वो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया है कि जी दोनों बोथ आर आवर फ्रेंड्स और दे आर विलिंग टू मीडिएट, ठीक है जी। चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया,
हमारे फेवर में, ठीक है जी। सो जितना इंडियन प्लान था ये फॉल्स फ्लैग का, ये नेगेट हो गया और इसकी वजह से वो अभी प्रॉब्लम में है। आपको पता ही होगा कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगेन एज अ वेटरन आई एम कन्विंस्ड कि पाकिस्तान आर्मी जो है दैट इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आर्मी में लोगों को ट्रेन भी किया है, हम सब ने किया है ट्रेन, वी नो कि कौन क्या है। लिहाजा वी आर कन्विंस्ड कि जी ये बहुत एक सॉलिड शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हैं अपनी आर्मी के साथ, और हम तैयार हैं, कोई भी हमें एक्शन दिया जाए हम करने को तैयार हैं एट दिस मोमेंट। वेटरन्स जो है सारे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा चुके वक्त की कमी है, तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊंगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी, अपने चीफ, अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स, जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स 1 कोर से भी ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम इस इंतज़ार में हैं कि यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, रायशुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें, और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेन मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया, और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने यूएन हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा अगर यूएन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है
कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है। और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो जिहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाज़ी बन सके तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जिहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को। और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि हमारा पैगाम पहले तो यूएन तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से यूएन और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जमील और मैं सिंध से आया हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेटरन चैप्टर ऑफ सिंध। मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ, ख़ासकर डीजी आर्म सर्विसेज बोर्ड, ISPR और मीडिया का, कि आपने मैं ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मैं ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें रिपीट करूँगा जो आप पहले सुन चुके हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान कि चाहे कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। आसिफ गफूर साहब का बयान कि इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। और रिसेंट DG ISPR ने भी कहा कि इंडिया जब चाहे आ जाए, आए अपनी मर्ज़ी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। आप यकीन करें कि सिंध में जितने भी गाजियान हैं सब रेडी हैं। दे आर आस्किंग अस डेली कि सर बताएं कब जाना है और कहाँ जाना है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी टू फाइट, और हर जगह अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। न सिर्फ गाजियान जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं, बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद हुर मुजाहिदीन की है जो तैयार हैं। उसके अलावा कौम का हर फर्द रेडी है। इंडिया में आजमाना चाहता है, आजमा ले। और 10 दिन से हम इंतज़ार में, वो नहीं आया। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मेजर वसीम महमूद है। आई एम प्रेसिडेंट PASAF वेटरन्स, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पर बाकी स्पीकर साहबान ने काफ़ी बात की, कुछ थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं। हम तमाम वेटरन्स, 3.1 मिलियन वेटरन्स, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स,
We all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside it, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready. We are ready. हमारे अगर आप कभी पार्क्स में चले जाएं अभी वहाँ पर तो आपको नज़र आएंगे वहाँ पे दूसरे लोग कम हैं, तो हमारे जो वेटरन्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जंग के लिए. एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं. थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फ़ौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है. तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगे जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं. 27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था. अभिनंदन साहब चाय पी के गए थे. अभी भी हमारे पास चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी. और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा इन्होंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं. कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट्स जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि जाके वो हमारे ऊपर हमला करें. लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी. सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आई हो जाए उन पर जो कि दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है. और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया. हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई. उसके बाद दे रैन अवे. और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे. तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम इसके साथ, हम सब वेटरन जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, सर्विंग जो हैं सारे, एक सिपाही से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज़ हैं. इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, इतना मतलब सैयद भी हो और अपना मुहाफिज भी हो. इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है. मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए. अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा लिखा, नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा. तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुज़ान पहुँचा सकता है? तो वहाँ पे मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे. और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स. लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी. हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी. तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से, इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं. फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद मैं फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को. हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क व कौम के लिए. और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क व कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं. इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है.
इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए ज़िंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो ज़िंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका। वो कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम लोग तो वो हैं, हम लोग तो वो वेटरन्स हैं। बाकी उसके अलावा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अपनी जिक्र हुआ था, जो इंडिया ने कहा जी हम वो पानी बंद कर देंगे, यूनिलैटरली पानी बंद नहीं कर सकता। और उसके अलावा उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका भी अपना वो करना पड़ेगा। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो तुम इस तरह की चीज़ करोगे, तो जिस दिन उस रिजर्वायर बनाओगे उसके अंदर पानी आएगा, तो उस दिन फिर हमारे बच्चे जो है वो पढ़ा करेंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इन इंडिया। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We are open to questions. There are. सर, दिस इज सदक फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। सर, सबसे पहले तो आप सबके जज्बे को सलाम, और हम भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। सर, कहना यह है, सवाल भी है कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा जो बैनुल अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, और जो इंडिया है उसके मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया से ही आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। उनके तज्ज़ियाकार ख़ुद कहते फिर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप कि क्या जंग से पहले ही भारत जो है वो उसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ गया है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। ये तो हो चुका है। देखिए, बात वहाँ आ जाती है कि जो सच पे होता है ना, अल्टीमेटली अल्लाह ताला मदद उसी की करता है। ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये आज की बात तो है नहीं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, पुलवामा में हुआ, उससे पहले भी बेशुमार होते रहे। तो ये बात, ये अब तो पूरी दुनिया को आया हो गया, और अब तो दुनिया पूरी जो है वो इंडिया को टेररिस्ट स्टेट एक्चुअली गर्दानती है। वो एक अलग बात है, बिकॉज ऑफ देयर सर्टन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट और ऑल दैट, वो खुल के कई कुछ बात नहीं करते। बट लुक एट कैनेडा, इवन इन अमेरिका, they say that it is a terrorist state. The point is कि unfortunately I would say कि इंडिया ने जब भी कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की है वो गलत तरीके से लेने की है। बीइंग अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर हम बिकॉज ऑफ गुड रीजंस अलग हो गए। तो एक अच्छे हमसाये की बजाय वो अपनी डोमिनेशन थ्रू हिंदुत्व, आरएसएस की जो है सोच, उसके तरीके से करना चाहता है। और विद इन इंडिया ऑल्सो, इफ़ यू हैव सीन एवरी डे, ये तो आज की बात तो नहीं है, मुसलमानों पे और जो नॉन हिंदूज़ हैं उन पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो वो सारी सब चीज़ें सामने एट दिस मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ आवर फॉर्चून ऑल्सो, गुड फॉर्चून, एंड ऑल्सो यकजहती जो पाकिस्तान के अवाम ने दिखाई है और अफवाज पाकिस्तान जो इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला का एक करम है। और ये यकजहती की वजह से इस वक्त जो इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स हैं, अगर उनके ऊपर आप गौर करें तो वहाँ अफरा तफरी का आलम, नोबडी इज बाइंग दैट नैरेटिव, दैट इज द पॉइंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्कर भट्टी को इनो टीवी से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मौजूदा सूरत हाल में भी आप पाक फौज के साथ खड़े हैं, और हम पाकिस्तानी भी सारा एक बंदा भी पाक फौज के साथ खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया था कि जो भी अगर ये सानिया हुआ उसके इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। दूसरा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये वाक़या हुआ तो ठीक 10 मिनट के बाद पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उसे उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान ने यह वाक़या कराया। तीसरा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, क्या वो पाकिस्तान उस एक तरीके की तरफ जाना चाह रहा है, उस मनसूबे को सबदोश करने के लिए ये सारी प्लानिंग उसने इंडिया ने की हुई है? इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। एग्जैक्टली, वुड यू लाइक टू? जो आपने बात की ना कि इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो कि 10 मिनट में FIR हो गई है, ये मोदी टेक्नोलॉजी है, ये हिंदुत्व टेक्नोलॉजी है, हमेशा से उनका इसी तरह रहा है।
और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस दफ़ा दे ओवर प्लेड देयर कार्ड्स, हर दफ़ा फॉल्स फ्लैग, इस दफ़ा इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि भाई ये इस तरह नहीं हो सकता। उनका आप देखें ना, एक कोर कमांडर, फिर एक इंटेलिजेंस का, दूसरा एयर का जो उनका है वो सैक हुए, जी वही कोर कमांडर नॉर्दर्न कमांड, वो सैक हुए। सो दिस शोज़ के इंडिया के अंदर भी अभी क्या पोजीशन है इस सिचुएशन। जी सॉरी, इंक्वायरी करें ना, इंक्वायरी वो क्यों नहीं मानते? जी एग्जैक्टली, बिकॉज वो कैसे करा सकते हैं इंक्वायरी? अगर सही इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी होगी तो वो तो सारा पोल खुल जाएगा। हमने तो पहले पुलवामा में भी यही कहा था उनको, जी कराओ इंक्वायरी, करा लो, ठीक है ना। जस्ट टू ऐड, जिस जगह छोटे से खित्ते में ओवर 7 मिलियन की फौज हो, ठीक है, और जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, लोग पैदल जाते हैं, और सिक्योरिटी के वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सिक्योरिटी होती है। एंड व्हाई एट दिस मोमेंट जब ये हुआ है वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सो इट क्लियरली शोज इट वाज प्री प्लान्ड, दे हैड एन ऑब्जेक्टिव, वो करना चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली जब आप पाकिस्तान ने कहा कि जी एक न्यूट्रल बॉडी से आप इसकी इंक्वायरी करवा दें, बिकॉज हम सच्चे हैं, एंड वो क्योंकि झूठे हैं वो नहीं करवा सकते। So actually this is the fact, or this has been now understood by the world community. ऐसी बात नहीं है, because after all world community भी तो study कर रही है ना जी इसको। Thank you. सर थैंक यू, ज़ीशान यूसुफ ज़ई दुनिया टीवी से। सर मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा, जो राफ़ेल है भारत का, इंडियन पॉलिटिशियंस भी उसका मजाक उड़ाते हैं और हमने सुना है कि उनके पास उसका जो सोर्स कोड है वो भी नहीं, तो इस पे आपका क्या टेक है? और लास्ट वन सर, कि पहलगाम वाक़े के बाद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर मुज़ाहरे है या पुरतशद्दुद वाक़यात है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और ओआईसी का जो परमानेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने अपने एलामिये में वर्ड यूज़ किया है स्केप गॉड के, मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। थैंक यू। का मैं जवाब देना चाहूँगा। राफ़ेल अच्छा जहाज़ है, अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ एरियाज़ में वो हमसे मैच करता है जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन जो असल चीज़ मैं आपको ब्रॉडली बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक एनवायरनमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एयर डिफेंस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एयरफोर्स ने अपने आप को एम्प्लॉय करना होता है। वहाँ पे इंडिया बहुत पीछे है। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज़ होती है जिसमें कि जहाज़ की आपस में जो बातचीत चल रही होती है, जो डाटा आ रहा था उसको जैम किया जा सकता है, ठीक है, पाकिस्तान उसमें आगे। दूसरी चीज़ ये एक होती है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि अब इतने सारे जहाज़ एयर में उड़ रहे हैं, उनको क्या ऑर्डर्स जाने हैं, कैसे उन्होंने एम्प्लॉय करना है, किस वक्त किसने मारना है, किस वक्त किसने चुप रहना है, ये सब चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करते हैं। और इसमें आपको पाकिस्तान की जो बर्तरी है उसका वाज़ेह सबूत ये था कि उन्होंने पुलवामा के दौरान अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया, इसलिए कि वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था। इसी तरीके से उनकी कम्युनिकेशन जैम हो गई, वहाँ से उनको मैसेज आ रहा था अभिनंदन को कि आप वापस मुड़ जाएं, बहुत सारे जहाज़ आ रहे हैं, और वो जो है वापस नहीं मुड़ सका, उसको आवाज़ ही नहीं गई और ही वॉज शॉट डाउन। इसके अलावा जो चीज़, ये तो वो चीज़ें जिनका हमें पता है। एक चीज़ वो है जो कि एयरफोर्स को पता है कि हम उस दिन 6 से 8 जहाज़ मारने की पोजीशन में थे और हमने छोड़ दिए, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है। कुछ टेक्नोलॉजी में वो हमारे से हम पल्ला भी हैं, जैसे राफ़ेल है, लेकिन राफ़ेल आइसोलेशन में कुछ जहाज़, लेकिन एक पूरी एनवायरनमेंट जिसमें आपने इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं या अदरवाइज एयर डिफेंस की एनवायरनमेंट होती है, उसमें पाकिस्तान आगे है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इश्तियाक गुंदल और मैं रोज़ टीवी से मुंसलिक हूँ। पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे अभी हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, हम मुंबई अटैक की बात करें, हम पुलवामा हमले की बात करें, हम उड़ी अटैक की बात करें, समझौता एक्सप्रेस की बात करें या ये पहलगाम हमला, हिंदुस्तान ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए। लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बाद आप समझते हैं कि जो मोदी सरकार है वो पहले से ज़्यादा कन्फ्यूजन का, ये घबराहट का शिकार है? यही वजह है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिसाइल हमला या
बालाकोट की तरह बचगाना किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय अब वहाँ पे मासूम जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं उनके ऊपर मुजालम कर रहा है, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जो है वो जुल्म व बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक है? मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि अगर आप देखें तो तमाम मसाइल का जो जड़ है वो मसला कश्मीर है। आप देखें कि जितने भी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं वो भी कश्मीर के अंदर, जितना वो जुल्म कर रहे हैं वो भी कश्मीर के अंदर। 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। जो कैद और बंद की सोबतें झेल रहे हैं वो इसके अलावा। और सबसे बड़ा अफसोसनाक मकाम ये कि आपने देखा कि हमारी वहाँ माँओं बहनों तकरीबन 18,000 के करीब हमारी उन माँओं बहनों की वहाँ जो इज़्ज़त में महफूज नहीं रही, उन्होंने रेप तक नहीं छोड़ा। एक तो वो कश्मीर के ऊपर बेशबाज जुल्म कर रहे। मेरी इब्तदा भी मैंने इस चीज़ से की थी, अभी भी यही कहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए वो मसला कश्मीर को हल करने पे होना चाहिए। उसको किस तरह हल किया जाए, सफारती सतह पे ज़ाहिर है हमारा स्टांस, हमारी डिमांड यही है कि पुरअमन तरीके से कश्मीरियों को उनका वो प्लेबिसाइट का हक दिया जाए। तो अगर कश्मीर का फ़ैसला हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में कोई उतने बड़े तल्लुकात ख़राब होंगे। और फिर बड़ी मज़े की बात यह है कि जितने दरिया हैं तकरीबन सारे ये कश्मीर से निकल के आते हैं। अगर मसला कश्मीर होगा तो हमारा पानी का मसला, इंडस वाटर ट्रीटीज़, ये सारे ये सेकेंडरी नैयत की हो जाती। अभी आखिरी बात जो आपने, आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि वो इस तरह का कोई ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अभी वक्त काफ़ी गुजर चुका है। अगर इंडिया ने कुछ करना होता या वो इस पोजीशन में होता तो वो पहले कर चुका होता। जिस तरह यहाँ से बात हुई है कि पहली दफ़ा इंडिया के अंदर भी काफ़ी कुछ उनके बारे में बातचीत हो रही है, तनकीद हो रही है। और फिर बड़ी चीज़ जिस तरह इधर से जनरल साहब ने कहा कि उनके 3 जनरल ऑफिसर्स जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं किया। दिस इज़ समथिंग यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इवन पाकिस्तान आर्मी। ऐसा कभी अगर होगा तो फिर आप अंदाज़ा करें कि उस फौज, उस मुल्क, उसको कितने मराल होगा, कितनी कुव्वत होगी कि वो हमारा मुकाबला कर सके। तो आखिरी बात फिर मैं यही कहूँगा कि इन सब बुराइयों, इन सब मसाइल की जो जड़ है वो मसला कश्मीर है। आप भी मीडिया के तौर पर, हमारा वेटरन का भी, जिस तरह मैंने पहले तकरीबन चैलेंज तक किया कि अगर मज़ीद इसमें डिले की जाएगी तो फिर वो पुरअमन वाला जो हमारा नारा है वो शायद नहीं पुरअमन रहेगा। और आखिरी वही चीज़ है कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, यूएन के ऊपर जोर दिया जाए कि मसला कश्मीर हल करे तो ये फॉल्स फ्लैग भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह पानी के प्रॉब्लम भी सारे खुद ब खुद हल आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें नहीं लगता है मुझे कि इंडिया इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान में किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। और अगर करे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मौजूद हैं और आपकी बातों से भी पता चला अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे साथ हैं। तो इस कौम को इंशाल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा। एक्सक्यूज़ मी, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा इस वन। जी जी प्लीज़। ताहिर नसीर फ्रॉम डॉन न्यूज़। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये ऑपरेशन किया गया पहलगाम वाक़या है, ये नहीं लगता कि इंडिया की गले की हड्डी बन चुका है? क्योंकि जो पहले पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे और वही सूरत हाल अब इंडिया की जो आवाम है वो फ़ौज के अगेंस्ट हो चुकी है और अब वो सेफ एग्ज़िट भी मांग रहा है। जहाँ तक ये पहले भी क्वेश्चन और अभी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी जो आपने किया है, इसमें जो आप लोग बता रहे हैं या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस किए जिसमें कि क्यों नहीं अपना वो इंडिया जो है वो हिम्मत क्यों नहीं कर रहा, हिम्मत कभी तक हम इतनी देर से इंतज़ार करें क्यों नहीं कर रहा। एक मैंने पहले अर्ज़ किया था, हमारे पास मिज़ल्स हैं जो कि PL-15 है, सुपरसोनिक, मतलब जो नज़र नहीं आता उसको, ये उसका राफेल शाफेल जो है वो उसके सामने में कुछ नहीं है। सेकंड,
जो अभी एक और चीज़ अभी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन विद प्राइड, वी हैव अभी इंडिया के पास S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके ऊपर दो बहुत अपने आप को कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं. वी हैव विद द हेल्प ऑफ चाइना HQ-9P, ये उससे बहुत बेहतर है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर है. और ये अभी जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर इट हैज़ बीन इंस्टॉल, उस पर अपना उसमें है. और ये एक वक्त में 100 मिज़ल्स जो है इंडिया अगर फायर करता है उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है ये. तो इस वजह से इंडिया जो है इसका की कोशिश नहीं कर रहा. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तल्लक है, जहाँ जहाँ पे भी इसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अभी पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उनके अपने सोल्जर्स तक जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ. उनके जो अंदर मैसेज हैं, वो जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है. उनके जो अभी अपना जनरल कुमार थे उनको उन्होंने सैक किया, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ. फिर डिप्टी चीफ एयर स्टाफ जो थे उनको उन्होंने सैक किया. किस किस को वो सैक नहीं करे? कहाँ तक ये सच कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाएं? अभी हम इतनी चीज़ें जो है बता रहे हैं कि आप लोग पूरे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी जानता है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि इंडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है. और किस वजह से करता है? अभी जब भी उनके या तो उनके कोई अंदर अपना आया होता है, अमेरिका जब वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, या उसके अलावा वो ये करता है जब उनके कोई अपना इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल देता है. हम लोगों ने कहा कि अगर आप जो करना चाहते हैं आप फेयर एंड फ्री न्यूट्रल जो है इंक्वायरी करवाएं. वी आर रेडी फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. बाबर मलिक फ्रॉम ARY न्यूज़. मेरा जनरल साहब से आपसे सवाल है कि जो हालात व वाक़यात इंडिया ने या भारत ने अंदाज़ा लगाया हुआ था अपने गोदी मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम का या फ़ौज का, लगता है सूरत हाल अब बैक फायर कर चुकी है? As a matter of fact, I think they are on one side underestimated Pakistan and its public. They thought कि पाकिस्तान में इंटरनल जो है ना वो इंस्टेबिलिटी है. दिस व्हाट दे थॉट कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या और सिंस उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने तो खुले बंदों कहा था कि जी हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं, हमें मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ के बंदे ही ले के उन्हें को अपने पैसे वैसे दे के हम सब कुछ करवा सकते हैं. दिस हैज़ बीन, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. उसने खुले वो एक ब्रीफिंग में कहा था. बट अनफॉर्चुनेटली टू दे शॉक, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, एक है. एंड actually I would say it is an opportunity given by India to Pakistan कि उन्होंने हमें बिल्कुल मुत्तहिद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड एट दिस मोमेंट दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि पूरी कौम, अवाम, अफवाज, एक्स सर्विसमैन, एवरीबडी इज़ टुगेदर. और उनकी सिर्फ एक आवाज़ है कि एक कदम आगे बढ़ाओगे ना जब हमारी सरहद की तरफ, तो मैं वो हम तुम्हारे साथ करेंगे कि तुम जो है नस्लें याद करेंगे. तो दिस इज़ एक्चुअली, सो दिस इज़ ऑन वन साइड, ऑन आवर साइड. ऑन द अदर साइड, द इंडियन इंटरनल डायनामिक्स, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ठीक है. एंड और सबसे ज़्यादा जो उन्हें नुकसान हुआ है वो हिंदुत्व और RSS की वजह से हुआ है. जो जुल्म उन्होंने और बर्बरियत जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, दिल्लत्स के ख़िलाफ़, नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो की है, वो अब आवाज़ें इवन हिंदूज़ जो हैं वहाँ के, वो आवाज़ें उठा रहे हैं इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़ कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं. एंड दे हैव कम टू अ कंक्लूजन, द इंडियन पब्लिक हैज़ कम टू अ कंक्लूजन कि मोदी साहब जो है वो अपना इक़्तिदार और बढ़ाने के लिए जब भी कभी कहीं भी इलेक्शंस होते हैं या किसी स्टेट में हो रहे हों या पूरी इंडिया में हो रहे हों, वो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं टू गेट देम यूनाइटेड. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल बिखर गए. और बीच में से आवाज़ें, उनकी पार्लियामेंट में आवाज़ें आ रही हैं, मुसलमान आवाज़ें उठा रहे हैं, इवन हिंदू आवाज़ें उठा रहे हैं. मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक खातून जो है वो इतने लॉजिकल आर्गूमेंट से बात कर रही थी कि भाई आपकी 7 लाख फौज जो वो वहाँ क्या कर रही है. तो दिस इज बीन अ ब्लेसिंग
देखिए बात यह है कि झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता, कुछ देर चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने हमेशा झूठ, दगाबाजी, फ्रेब और जुल्म की दास्तान जो है ना वो रकम की। थैंक यू वेरी मच। नवीद अकबर, आज टेलीविज़न से। जनरल साहब, मेरा सवाल ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको पता है कुछ रातों से सूरत हाल जो है वो कशीदा रही है और गर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। आज ही भारत के एक बड़े अखबार ने लिखा है कि अगले 48 घंटे में कोई बालाकोट टाइप स्ट्राइक हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स के लिए पाकिस्तान किस तरह से तैयार है और हमारे एक्स सर्विसमैन जो है उनका जज्बा कैसे है? आपने बताया भी है, लेकिन मज़ीद अगर कोई ऐसी स्ट्राइक होती है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जो है वो किस तरह से जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी यूनिफॉर्म तैयार की हुई हैं, बूट्स तैयार हैं। एज़ फार एज ग्राउंड सिचुएशन इज़ कंसर्न, जैसे बिगड़े ज़रीन फरमा रहे थे, वी आर देयर। एज़ फार एज आप जिस स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आई विल जस्ट गिव दिस माइक टू मार्शल। आप ज़रा, मैंने आपसे पहले आपको जैसे बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तैयार है और मुकम्मल तौर पे तैयारी की हालत में है। हर वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पे और हमने तमाम चीज़ें देख रहे हैं। एयर वॉर जो है उसकी नौइयत बड़ी चेंज हो चुकी है। अब वो भी हमारे अंदर देख रहे हैं और हम भी उनके अंदर देख रहे हैं। वो भी अपने बॉर्डर में खड़े होकर हमारे पे फायर कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात होगी अगर वो शुरू करेंगे। तो एक बात जो आपने कही कि वो कर सकते हैं, जो ही करेंगे एयरफोर्स और तमाम आर्म फोर्सेस का रिजॉल्व है कि एक मजबूत और बेफिटिंग रिस्पांस उनको ज़रूर जाएगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ पीस। छोटे हथियारों का फायर हो रहा है, बाकी ये जो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट। हमने कल जनरल साहब को चेक करके तो इतला दी है प्रेस। अच्छा सर, सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं किया जब से पाकिस्तान वजूद में आया। हर तरह से कोशिश की जा रही है हर टाइम, और जंग हुए भी काफ़ी अरसा हो चुका है। इस वक्त हमारी पाक आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी, हमारे सर के ताज, आप सब एक्स सर्विसेज मैन, हमारे सरमाया हयात, और साथ साथ पाकिस्तान की 25 या 26 करोड़ जो भी है आबादी, जो है पूरी कौम, इस वक्त उनमें जो एक जोश और एक करंट इस वक्त जो पैदा हो गया इस सिचुएशन में। और अब ठीक है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, बार बार करते हैं और मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है, जो हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट, उड़ान पाकिस्तान, ये ऐसे इनिशिएटिव है कि जो कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत जल्द एक बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो ख़त्म हो गया। अब कोशिश जो भी थी वो तो हो गई है। मैं नहीं समझता, आप लोग समझे बेहतर है कि मौका भी है, वक्त भी है, दस्तूर भी है, तो वो अगर पहल करे तो हम पहल करें और ये किस्सा ही मुकाएं और ख़त्म करें मोदी सरकार को। क्या समझते हैं सर? नहीं बिल्कुल, मैं आपके जज्बात की बिल्कुल तायद भी करता हूँ और ये होने भी चाहिए जज्बात। फ्रेंकली जैसे बिगड़े ज़रीन ने भी कहा है कि बिटवीन द टू कंट्रीज़ कश्मीर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, ठीक है। और अभी जो रीसेंट मैप जो पाकिस्तान का यूएन में सबमिट हुआ है एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर, उसमें द लाइन जो कश्मीर की लाइन है वो इट इंक्लूड्स मकबूजा कश्मीर बिकॉज इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया। पहले इंडिया ने अपने बीच में शामिल किया हुआ था, दैट वाज रॉन्ग। एक्चुअली द लाइन इज़ जो हमारा मैप है विच इज़ रिकग्नाइज्ड एंड सबमिटेड इन यूएनओ एंड एक्सेप्टेड, इट हैज़ अ लाइन ओवर मकबूजा कश्मीर, ठीक है। सो मैं अपने एंगल से ये बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद कर लिया, अभी मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करना है, ठीक है। ये हमारा नुक्ता नज़र होना चाहिए। वो डिप्लोमेटिकली करना है, पीसफुल मीन्स से करना है, नेगोशिएशन से करना है, या फिर हथियार से करना है, या जैसे कह रहे हैं जहाद से करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है जी। बिकॉज यूएन में प्लेबिसाइट का है, अब जब प्लेबिसाइट हो जाती है, राय सबकी ले ली जाती है, वो एक सलूशन है। सो ये इंशाल्लाह ये इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और ये उसी वक्त
हमारी आपस में जितनी भी टसल ख़त्म होगी, जब तक कि ये मकबूजा कश्मीर जो है ना वो हल नहीं हो जाता। जवाब देना चाहूँगा। पाकिस्तान आर्मी जो है पिछले 2 डिकेड से एक बैटल हार्डन आर्मी बन चुकी हुई है और इसका हर जवान बहुत सख्त मुश्किल इलाकों में सर्व कर चुका हुआ है, जबकि इंडियन आर्मी ऐसा नहीं कर रही, ना कर चुकी है। आप उसे देख लें, इंडिया का वो बंदे शेकी हैं, इंडियन सोल्जर्स। इसी शेकीनेस की वजह से कभी अपने बंदों को मार देते हैं, कभी अपने बंदों के ऊपर अपना बम गिरा देते हैं, कभी ये कर देते हैं। तो उनका हमारा मुकाबला नहीं है। जब भी मुकाबला करेंगे तो इंशाल्लाह वो देखेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, मैं हनीफ कमर, सच टीवी से। आप सब वार वेटरन्स ने भारत को आजमाया हुआ है, उनकी तमाम आपको कमज़ोरियों का भी पता है, सब कुछ पता है, जंगी सलाहियत का भी जो कुछ है पता है, और हर मौके पे जवाब भी भरपूर दिया हुआ है। इस वक्त जो एक गठजोड़ बन रहा है वो है एक तो बुचर ऑफ गज़ा और बुचर ऑफ गुजरात। ये दोनों मिल के एक गठजोड़ बनाया हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो इन दोनों के बारे में आप क्या तबसरा करेंगे? बुचर ऑफ गज़ा इसराइल, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड, वहाँ पे यहाँ पे भी कश्मीरियों का, मुसलमानों का और इवन के दीगर अक़लियतों का भी जेनोसाइड हो रहा है इंडिया में। तो इस सारी सूरत हाल पे आपके क्या कमेंट्स हो? बड़ा क्लियर है, जहाँ भी जेनोसाइड होगा तमाम कौमों पे ये लाजमी है एज पर द यूएन चार्टर टू गेट टुगेदर एंड डिफीट दैट, और उसको सजा दी जाए। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड कम्युनिटी इज डिवाइडेड ऑन दिस। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि गज़ा पे जो हो रहा है वो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, ह्यूमैनिटी पे जुल्म हो रहा है, और इस पे तमाम अक़वाम इर्रिस्पेक्टिव वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, उनको आवाज़ें उठानी चाहिए, और आवाज़ें उठ रही हैं। एज़ फार एज पब्लिक इज़ कंसर्न, आपने देखा होगा हर जगह, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, एवरीवेयर पीपल आर वॉइसिंग कंसर्न. Same is happening in Kashmir. That's why I always say that actually when we are talking of humanity or when we are talking of genocide, तो these are the two places जो है ना hot spots हैं, और इसके लिए पूरे अक़वाम जो हैं इस दुनिया की, उनको इकट्ठा होना चाहिए, एक आवाज़ होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पॉलिटिक्स, पर्सनल इंटरेस्ट, किसके बिजनेस इंटरेस्ट, वो बीच में आ जाती हैं. बट द पॉइंट इज़ कि अभी जो चेंज आ रहा है दुनिया में, जो चेंज आ रहा है वो ये है कि हुकूमतें जो हैं वो दे मे बी हैविंग देयर ओन स्टांस, बट पब्लिक इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्टांस. और ये इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट. देखें जितने जो है ये प्रोसेशन वगैरह ये बाकी जगहों पे निकल रहे हैं, अमेरिका में बहुत निकल रहे हैं, इवन विद इन इज़राइल निकल रहे हैं, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट विच इज़ कमिंग अप, एंड इंशाल्लाह ये फिर और आगे चलेगी, एंड इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये मसले जो है ना इंशाल्लाह हल होंगे. पाकिस्तान इज़ अ पीस लिविंग कंट्री. हम जंग नहीं चाहते बताते खुद, लेकिन अगर कोई जंग हमारे पे मुसल्लत करेगा तो हम उसको सबक सिखा देंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. आप आज तशरीफ़ लाए. आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट for us, for veterans of Pakistan, that we must, because हम आपस में तो बातचीत करते हैं और अपने जज्बात का एक दूसरे से शेयर करते हैं, but I think it was important to sort of share these feelings with you, with the nation, that we stand with them, we stand with Pakistan, we stand with the armed forces of Pakistan, and any time कोई बैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा, हम इंशाल्लाह उसका जवाब जो है बढ़ चढ़ के देंगे, एंड वी विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग विद द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. एंड आई थैंक द मीडिया, बिकॉज आजकल की जो जंग है वो सिर्फ काइनेटिक जंग नहीं है, इट इज़ अ मीडिया वॉर, इट इज़ अ देखिए इंडिया प्रोपेगेंडा करता है पूरी दुनिया में, जो झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा होता है. बट ये अभी पहली दफ़ा हुआ है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर मीडिया एंड जो हमारा जो सही स्टांस हमारा जो दुनिया को हमने दिया है, और ख़ास तौर से आई अगेन रेफर टू दी कॉन्फ्रेंस जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड DGISPR ने की, और जो DGISPR ने जो बिल्कुल थ्रेड बेयर एनालिसिस किया था उस पूरे सिनेरियो का,
कि हाउ इट हैपन, 1 मिनट के बाद क्या हुआ, दूसरे मिनट के बाद क्या हुआ, 10 मिनट के बाद वो जो है FIR जमा हो गई एंड देयर वाज नो रिएक्शन. आई थिंक दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, दैट इज कन्विंसिंग एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज कन्विंस्ड. यार ये सारा इन्होंने जो है ना वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है. तो थैंक यू वेरी मच. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर प्रिंट एंड सोशल मीडिया, अपना मीडिया जो प्रिंट है, सो ग्रेटफुल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ये सारों का सर बड़ा खूबसूरत रहा है.